Good morning. Good morning, students. What about audio and video? So it's clear. Clear? Okay. I'm at school. तो हम लोग कब आएंगे स्कूल? School. Sound clear, huh? Yes, sir. I think the box is clear. The box is visible to you. Yes? This is my limit. Within that limit, I will write. Okay. What we have discussed in previous lectures. What we have discussed. Anyone? Sir, solving questions. Questions? Scalar product of vectors. Scalar product of the two vectors. Okay. हम लोगों ने पढ़ा होगा कि दो अगर वेक्टर्स हो उनके मल्टीप्लिकेशन दो तरह से पॉसिबल है. फर्स्ट वन दैट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड वन दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट. ओके. स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट. तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है हाउ टू do scalar vector between two vectors. Okay. So we have done many questions based on scalar product. Yes. Now today we will learn how to multiply vector means vector product. Write down next heading. Next heading. Vector product. Vector product. Vector product. Okay. What is vector product? How we will multiply the two vectors? Let the vector A is let the vector A is X I cap plus AY J cap plus AZ. Similarly, factor B is equals to BX I cap
j cap plus p z k cap. Okay. Note down fast. Is this visible? Visible to you all? Sir, your voice is not audible properly. Voice is not clear because I don't have earbuds. Voice is clear? Anyone? Anyone? Sir, voice is clear, but it's slow. Yes, What? Sir, it's slow. Slow. Loudness is low. Loudness is slow because I don't have earbuds, no earphone. But still manageable. Still manageable. Okay, good. What about visibility? Sir, it's good. Good. Okay. Clearly visible. Note down fast. Note down. How we will do cross product. Let this is vector A cross vector B. What is the method? देखो एक होता है मेथड और दूसरा होता है उसका प्रूफ, है ना? प्रूफ पे हमको नहीं जाना है, इसका प्रूफ कैसे आया, कहाँ से आया, हमको नहीं जाना है, लेकिन हमको मेथड पता होना चाहिए कि दो वेक्टर को हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मेथड होता है? सबसे पहले आप ए क्रॉस के अगर आपको निकालना हो, आप सबसे पहले यहाँ पे दो बड़ी लाइनें आप ड्रॉ करें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर आप लिखोगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे इट इज ए क्रॉस बी, देन यू विल राइट हियर एट दैट पॉइंट्स द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेक्टर ए मींस कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप एंड कोएफिशिएंट ऑफ के कैप। नहीं सुनाई दे रहा है क्या? ओके, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से। First, here we will write the coefficients of I cap, J cap, and K cap. Here it is coefficient of I cap is X. Here it is vector A cross B. आप पहले A फिर B लिख रहे हो, इसलिए पहले A की coefficients लिखोगे। It is very simple, हाँ? X, AY, and AZ. Here Bx, By, and Bz. Total. Note down fast. This is the method. Here we will write I cap, J cap, K cap. Here first it is A cross B, then we will write in the second row the coefficient of vector A, and here the coefficient of vector B. Means the coefficient of I cap, coefficient of J cap, and coefficient of K cap. I, J, and K. Okay. Then how we will solve? How to solve this determinant? This is the determinant. And how we will solve this determinant? Okay, the method is first take I as it is, I cap. Okay, and within bracket, I cap within bracket. देखो, hide the row and the column belonging to I cap. Hide the row and column belonging to I and row and column. Okay, आप यहाँ से अगर देखोगे I हमने ले लिया, I के रो को हाइड कर देंगे और I के कॉलम को हाइड, क्या बचेगा? AY, AZ, BY, BZ. समझ में आ रही बात?
नहीं आ रही? If we have taken I cap here, I cap, we have taken I cap here, then we will hide this row and this column, this row and this column. Okay, now what will be left here? AY, AZ, BY and BZ will be left here. Then we will multiply these two minus this, multiply these two and minus multiply these two, means here AY BZ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, AZ BY, AZ AY BZ, AY BZ minus AZ BY. Clear? Then minus J cap, I cap, okay, and then J cap. देखना ध्यान से, J cap minus J cap. Okay, then hide the column belonging to J cap and hide the row belonging to the J cap. Okay, now here within bracket we will write what is left? AX, AZ, BX and BZ. To multiply here AX BZ minus AX BZ minus AZ BX. AZ BX. Okay. Any problem? No, sir. Okay. Now here the third point that is plus k. उसी के आगे आप लिखोगे plus k cap, hide the and row of k, hide the column and row belonging to k, that you will, here it is AX, AY and BX, BY will be left. Here you multiply these two and minus. Okay. AX, BY, AX, BY, AX, BY minus AY, BX. AY, BX. That is the result. This is the method to cross the two vectors. To cross the two vectors. ओके, एक बार फिर से बता दें ध्यान से, क्या करेंगे हम, A क्रॉस B निकालना हो, A वेक्टर गिवन हो, B वेक्टर गिवन हो आपका, तो आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले दो लाइन ड्रॉ करोगे आप सीधे सीधे, फिर I कैप, J कैप, K कैप लिख दोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ऑफ A, कोएफिशिएंट्स ऑफ B वेक्टर, है ना, कोएफिशिएंट आपके यहाँ पे I के नीचे I का कोएफिशिएंट, J के नीचे J का कोएफिशिएंट और K के नीचे K का कोएफिशिएंट। सेम इसी तरह से B है यहाँ पे, तो BX, BY एंड BZ। ओके, BX, BY एंड BZ। क्लियर? इसके बाद आप सॉल्व कैसे करोगे इसको ये पूरा डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट को आप कैसे सॉल्व करोगे? क्या सॉल्व क्या करना है, I कैप को I कैप लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे I कैप, ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको मल्टीप्लाई माइनस इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, AY BZ माइनस, पहले ये करते हैं ना, पहले ये फिर ये, हमेशा तीनों केस, पहले ये फिर ये, AY BZ माइनस AZ BY, ठीक है। ये प्लस I माइनस J, फिर प्लस K, माइनस प्लस I माइनस J एंड प्लस K। यहाँ पे आप देख
माइनस जे, ये कॉलम और ये रो और ये कॉलम को हाइड कर देंगे। ax bx z और bz बचेगा। तो ax माइनस ax into bz, ax into bz, ax into bz माइनस az into bx। क्लियर? इसके बाद आप यहाँ पे प्लस के लेंगे, प्लस के लेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको? ए, ये कॉलम एंड रो को हाइड कर देते हैं, ठीक है? कॉलम और रो दोनों को हाइड कर देंगे, तो क्या आपको मिलेगा? ax ay bx bz, ओके? ax by into by minus ay into bx। वन नंबर ये देखना, i j k है ना? i को लेंगे तो i का कॉलम और रो को हाइड करेंगे, j को लेंगे तो j का कॉलम और j के रो को हाइड करेंगे, और अगर हम k लेते हैं तो k के कॉलम और k को हाइड करेंगे, और अपना प्रोसीजर पहले ये वाला फिर ये वाला करेंगे। एक बात बस आपको याद रखनी है कि यहाँ पे प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, यानी i प्लस में, j माइनस में और k प्लस में होगा। ये रूल होता है, हाँ? इसमें हमको फिजिक्स चूंकि पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में हमको प्रूफ में नहीं जाना है, अदरवाइज यू विल लर्न इन द 12th मैथमेटिक्स why it is plus, it is minus and it is also, है ना? क्यों ये प्लस माइनस होता है, ये आप 12th के मैथमेटिक्स में जब आप पढ़ोगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, तो आप उसमें क्लियरली आप पढ़ सकते हो, ठीक है? लेकिन फिलहाल आपको इसे प्रूफ में नहीं जाना है, आपको मेथड आपको पता होना चाहिए। क्लियर? नोट हो गया? नोट हो गया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं एग्जांपल लेता हूँ। If vector A is equal to I cap plus 2j cap plus k cap, note down, vector B is equal to 2I cap plus j cap plus 3 k। I cap plus 2j cap plus k cap, and vector B is equal to 2I cap plus j cap plus 3 k cap। Two vectors are given. Okay, the two vectors are given. We have to find, right? Find A cross B. Find A cross B. Find vector. Find vector A cross B. We have to find vector A cross vector B. Okay, I will do. फर्स्ट क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ करते रहना, देखना इसमें क्या है, ठीक है? देखो ए क्रॉस बी फाइंड करना है आपको, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप ए क्रॉस बी लिखोगे, और सबसे पहले आपका काम क्या करना है, आई कैप जे कैप एंड के, ठीक है? बनाओ, एक एक स्टेप मेरे साथ करना, फिर दूसरा क्वेश्चन अपने आप से करना। पहले मैं करता हूं, मेरे साथ साथ करो, है ना? मेथड को पहले सीख लो आप लोग, उसके बाद आप खुद करोगे, है ना? एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, नोट डाउन द क्वेश्चन। इसके बाद कोफिशिएंट्स को लिखें, ए क्रॉस बी, पहले ए का लिखेंगे फिर बी का लिखेंगे। ए क्रॉस आई कोफिशिएंट 1, जे कोफिशिएंट 2, के कोफिशिएंट 1, हियर बी आई कोफिशिएंट 2, जे कोफिशिएंट 1, के कोफिशिएंट।
2, 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 3. Okay? यहाँ पे देखो first you will write here I cap. Within bracket, what you will write? Hide this column and this row. Hide this column and this row. This 2, 1, and 1 and 3 will be left. Okay? Now 2 multiplied by 3. 2 multiplied by 2 multiplied by minus 1 multiplied by 1 minus j. Note down. Note down. Okay. What about j? Hide this column and this row. Hide this column and this row. So you will get 1, 1, 2, and 3. This minus this. Multiply this minus multiply this. 1 into 3 minus 2 into 1 plus k cap. Plus k cap. Hide the column and hide the row. You will have 1, 2, 2, 1. 2 multiplied by 1, 2 multiplied by, sorry, 1 multiplied by 1, 2 multiplied by 2. 1 multiplied by 1, 2 multiplied by 2. I think it is visible to you all. Visible है ना? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Solve करो इसको तो I cap 6 minus 1 minus j cap 3 minus 2 plus k cap 1 minus 4. Okay, here after solving we will have 5 I cap minus it is 1 means simply j cap plus and here it is minus 3 it means minus 3 k cap. 5 I cap minus j cap plus not minus. देख लेना भाई कौन लिखा है थोड़ा सा गड़बड़ प्लस माइनस देख लेना प्लस 3 आर्यंशी सिंह माइनस होगा ना इज इट करेक्ट ना हाँ हाँ ठीक कोई दिक्कत इम्पोर्टेंट है ना कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पेशली इन competitive examinations. Okay, done. बहुत आराम से करा रहा हूँ हो जाना चाहिए. Okay, write down next question. If factor A is equals to I cap plus K cap and factor B is equals to J cap plus K cap. Factor B is equals to J cap plus K cap. Do yourself. Find A cross B. Find A cross B.
minus I minus J plus K. Minus I minus J plus K. Good. Very good. Around 10 students replied, only around 10 students. क्या हो गया इसमें? वो इजी तो है, इसमें क्या है? तो बहुत आसान है, कोई टफ है? बताओ, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है? कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया? बताओ। और यहाँ पे माइनस जे कैप और प्लस के कैप ये फिक्स रहेगा क्या? कहाँ पे? यस सर, वही सर, वहीं पे क्या माइनस है ना? माइनस और माइनस जे कैप प्लस के कैप जो है वो फिक्स रहेगा, सिंबल जो है। प्लस है ना, इसमें कहाँ माइनस है? मतलब वो सर फिक्स रहेगा ना, माइनस जे कैप और प्लस के कैप जो है, जो उसका प्लस माइनस जो है। तो ये माइनस है, ये प्लस है। सर ये फॉर्मूला में डाउट पूछ रहा है। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस, प्लस माइनस प्लस। बता दो, दिया टाइम। आई के साथ आप प्लस रखोगे, जे के साथ आप माइनस रखोगे, और के के साथ आप प्लस रखोगे। ठीक है ना? यस सर। ओके। हाँ, बताओ। डन। Okay, write down next. If vector A is equal to I cap minus j cap minus 2k cap, and vector B is equals to minus I cap minus 2j cap and minus k cap. Find A cross B. Find A cross B. बहुत फास्ट करो तो क्या होगा? A cross B, I cap, J cap and K cap. 1 minus 1 minus 2 minus 1 minus 2 minus 1. I cap 1
-4 - j cap -1 -2 plus k cap -2 -1 -3 I cap plus 3 j cap and -3 k cap. Yeah. माइनस प्लस माइनस प्लस। हाँ देख लेना, एक आध लोगों का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, किसी एक का थोड़ा गड़बड़ हुआ है। -3 I कैप प्लस 3 j कैप -3। सर +3k होगा ना? प्लस होगा, ये तो मेरा तो माइनस है। देखो k को हाइड करेंगे, k को ये बचेगा 1 × -2 तो -2 हो जाएगा। समझ गई सर। अच्छा ठीक। नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उसमें बहुत यूज है इसका, है ना। स्पेशली चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में इसका बहुत यूज है, इसलिए इसको याद रखोगे आप, है ना। और भी क्वेश्चन दे देते हैं, फटाफट तुम लोग करके बताओगे, हाँ दे देना। और 2-4 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करो अभी, आंसर बताओ। Yes, sir. वेक्टर I कैप प्लस 5j माइनस 3k, वेक्टर B माइनस I कैप प्लस 3k। ये क्वेश्चन k क्रॉस भी फाइंड करना है। Find a cross B in these two questions. First, आप पहले वाले का बताओगे आंसर क्या है। $15I + 5k, 15I + 5k, इसका आंसर है 15I + 5k, इसका आंसर। देख लो मैच कर लो, अगर किसी का ना आए तो बताओ। $15I + 5k। चलो नेक्स्ट वाला करो, ये नेक्स्ट वाले नेक्स्ट
सेवन आई प्लस 21J प्लस 7. 7I plus 21J plus 7K. यह है क्या? और किसी का है? सेकेंड वाले. सेवन आई plus 21J plus 7K. Anyone else? Anyone else who is getting the same answer? Seven, 21, and 7. Good. 7, 21, 7. Okay, good. Seven, 21, and 7. ठीक. Okay. Any problem to anyone? Any further problem? No? सर फर्स्ट वाले में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है. कंफ्यूजन नहीं? क्या हो गया? इससे क्या दिक्कत है? सर जे वाले में कैलकुलेशन में कहीं गलत हो रहा है. हाँ तो इसको ट्राई करना. देखो कई सारे स्टूडेंट्स का 10 स्टूडेंट्स का यही आंसर आया है. तो मैं मान करता हूँ ठीक है, क्योंकि मैंने किया नहीं है. अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो मान के चलता हूँ ठीक है, क्योंकि एक दो स्टूडेंट ने कई स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ खुद से करना. डू योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू कॉपी. ओके, डोंट ट्राई टू कॉपी. और ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया हुआ है. आप खुद से आप इसको क्या नाम है फिर से कर सकते हो. आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो. क्लास ओवर होने के बाद भी आप चाहो तो इसको दोबारा अपने आप से करके आप आंसर मैच कर सकते हो. ठीक है ना? बाकी जिसका नहीं आया वो आंसर लिख ले, इसको प्रैक्टिस करें. नोट डाउन द आंसर. नोट डाउन द आंसर. और जो कर चुके हैं एक बार दो बार और प्रैक्टिस कर लेना. सेम क्वेश्चन को आप रिपीट करके देख लेना कि आंसर फिर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है जी? ठीक है ना? हाँ, तुम्हारा डाउट भी है. डाउट को भी एक्सप्लेन कर देते हैं. वेट. Okay. The question is this. A particle has velocity of 10 meter minus 10 meter per second and is retarding at the rate of 2 meter per second square. What will be the velocity after 2 seconds?
नोट डाउन। Note down the question. ओके, देखो दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। टाइम इज दैट 2 सेकंड। रिटार्डिंग लिखा हुआ है इसलिए माइनस, और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है कितनी -10, है ना। आपसे पूछा हुआ है फाइनल वेलोसिटी v is equals to u plus at, v is equals to u plus at, v is what, u is what, -10 and plus -2 and 2, okay, -10 -4, that is -14 मीटर पर। इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, आपका जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते हैं। हाँ सर इसमें हम ये मान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बॉडी हमारे पास आ रही है और वो बॉडी अपने लिए एक्सेलरेट कर रही है लेकिन हमारे लिए रिटार्ड कर रही है क्योंकि हम उसकी स्पीड को निगेटिव ले रहे हैं। हाँ आंसर ठीक है अतीक। आंसर इज राइट और नॉट? आंसर पता ही नहीं है। अरे बोलोगे भी, चेक करके रखना चाहिए ना। देखो बिना आंसर के सॉल्व मैं नहीं करता, है ना, बिना आंसर के मैं सॉल्व नहीं करता। तो फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होगी। जैसे तुम यहाँ पे कह रहे हो रिटार्ड भी कर रहा है, या फिर ये प्लस होगा, है ना। ये -10 मीटर पर सेकेंड ना होकर वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा, +10 होगा तो माइनस होकर प्लस हो जाएगा। वेलोसिटी इज -10 और 10, जैसा कि आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है -10 मीटर पर सेकेंड। आप बताओ आंसर क्लियर करके जाओ ना उसको। -10 लिखा है प्लस लिखा हुआ है? -6 आ रहा है, फिर अगर रिटार्ड भी लिखा हुआ है तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो कैसे, क्वेश्चन में बहुत कुछ डाउट होता है ना, बहुत कुछ होता है। लैंग्वेज भले लिख दे रिटार्ड हो रहा है ना, देखो कैसे। -10 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट इधर की तरफ है, ये नेगेटिव है और ये हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि रिटार्डेशन यानी स्पीड अपना क्या कर रहा है। अब रिटार्डेशन का मतलब हुआ माइनस,
तो किस सेंस में रिटार्डेशन, इस सेंस में रिटार्डेशन है, इस सेंस में रिटार्डेशन है ना। अगर हम माइनस, जैसे उसमें जो दिया हुआ है कि रिटार्ड कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव। सर अगर रिटार्ड कर रहा है तो इसका मतलब यही ना कि सर जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है। जो एक्सेलरेशन है सर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है सर, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे ना सर। अगर उसकी लैंग्वेज देखते हैं कि हाँ अगर माइनस में जा रहा है और वो रिटार्ड कर रहा है तो हाँ ये प्लस हो सकता है। अगर प्लस लगे तो आपको उसका तो ठीक हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। हाँ सर इसी में डाउट था सर। और कौन सा क्वेश्चन है? How to differentiate y is equals to x to the power 3 with respect to y and with respect to time। ठीक, देखो बोल रहा है कि y is equals to x3 है ना, with respect to y भी करना है, with respect to t भी करना है। ठीक है, अगर इसको मैं dy upon dt करता हूँ तो ये 0 है, dy upon dt। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई फंक्शन नहीं है, टाइम का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dt भी 0 और dx ओवर dt भी क्या होगा 0, क्योंकि इसमें कोई t का टर्म नहीं है। ठीक है, दूसरी बात y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3 को अगर y के रेस्पेक्ट में करना है तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू y टू द पावर 1/3 करना और यहाँ पे dx ओवर dy, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, इट विल बी 1/3 y टू द पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 y टू द पावर माइनस 2y। ठीक है, या इसको ऐसे कर सकते हो 1/3 1 अपॉन y टू द पावर 2। दिस इज द आंसर। ओके, और भी क्वेश्चन है तुम्हारे, फिर वो भी बता देंगे। तुम्हारे स्कूल में कुछ काम कर रहे हैं? ठीक है, ओके। आफ्टर गिविंग अटेंडेंस यू मे लीव द क्लास। गिव योर अटेंडेंस एंड लीव द क्लास।